اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ آپ سن رہے ہیں ابن صفی کی عمران سیریز ڈرامہ آہنی دروازہ، تیسرا حصہ۔ بابا تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ سراغ رساں ہیں اس لیے خود ہی سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ ان کے ذہن میں دراصل جاسوسی ناولوں کے سراغ رساں ہیں جو آنکھ بند کر کے گھر بیٹھے ملزم کا پتہ نشان بتا دیتے ہیں۔ مگر خیر، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ان کے سگار کیس میں بچھو کیوں رکھے گئے تھے؟ عمران صاحب، اگر میں یہ بتا دوں تو پھر آپ کہاں کے سراغ رساں؟ اگر یہی معلوم ہوتا تو ہم مجرم کو نہ پکڑ لیتے۔ دیکھیے شاہدہ صاحبہ، کیا وہ بچھو سردار صاحب کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ پھر بچھوؤں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے عمران صاحب۔ کیا ان کے داہنے ہاتھ میں ورما جانے سے کوئی اہم کام رک سکتا تھا؟ اوہو، اب آپ سراغ رسانوں کے سے سوالات کر رہے ہیں، پھر آپ اتنے احمق کیوں نظر آتے ہیں؟ یقین کیجئے میں فی الحال شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے میرے احمق نظر آنے سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔ آپ بدتمیز ہیں۔ جی ہاں، مجھے یہ بھی تسلیم ہے، لیکن فی الحال اب اپنے بابا کی زندگی محفوظ رکھنے میں میرا ہاتھ بٹائیے شاہدہ صاحبہ۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیا بتاؤں۔ وہ اپنی زمینوں کے متعلق ایک غیر ملکی کمپنی سے کوئی معاہدہ کرنے والے تھے، لیکن اگر وہ آج اس معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتے تو ایک ماہ بعد انہیں کون روک سکے گا؟ یعنی اگر ان کے داہنے ہاتھ میں بچھو ڈنگ مار بھی دیتے اور ان کا ہاتھ کچھ دنوں کے لیے بیکار بھی ہو جاتا تو اس سے فرق ہی کیا پڑتا؟ دستخط کچھ دنوں کے بعد بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں۔ پھر بتائیے بچھوؤں کا مقصد؟ آپ خود معلوم کیجیے عمران صاحب۔ یعنی اب آپ مجھے بھی جاسوسی ناولوں کا سراغ رساں بنانا چاہتی ہیں؟ یعنی میں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر واٹسن کو پکار کر کہوں، ذرا الماری سے وہ کتاب تو نکالنا جو گدھے کی کھال پر لکھی گئی تھی اور اس پر گینڈے کی کھال کی جلد ہے، اور میں وہ کتاب منگوا کر اس میں سے بچھوؤں کی اقسام کے متعلق پیارے واٹسن کو 3-4 پیراگراف سنا کر بور کروں اور پھر یہ ثابت کروں کہ یہ بچھو 100% نقلی ہیں۔ پھر واٹسن میرا عزیز اسی قسم کے اصلی بچھوؤں کی تلاش میں نکل جائے اور دن بھر مارتا پھرے ادھر ادھر جھک، اور واپس آئے شام کو اس خبر کے ساتھ کہ وہ نقلی بچھو بھی نہیں تھے، یعنی کہ سرے سے بچھو ہی نہیں تھے بلکہ کیکڑے کی ایک کمیاب نسل کیکڑی کم ڈب ڈب کے چند آوارہ افراد۔ مگر واٹسن آج کل ایک یتیم خانہ چلا رہا ہے، اس لیے میں اپنی اسکیم کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ عمران صاحب، آپ بابا سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا اس معاہدے سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز تھی؟ آپ ہی بتا دیجئے نا شاہدہ صاحبہ۔ بابا تو ایک نوکر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ سردار صاحب لائبریری میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جائیے عمران صاحب، بابا نے آپ کو لائبریری میں بلایا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا ہے سردار دراب صاحب؟ ہاں، تم مسٹر علی عمران، میں تم سے انتقام لوں گا، تمہاری بدتمیزی کا انتقام۔ تمہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا، بس اب جاؤ، میں نے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا۔ اس شام دراب کیسل میں واقع گرلز کالج میں تقریری مقابلہ تھا۔ موضوع تھا عورتیں مردوں سے برتر ہیں۔ سردار دراب صاحب صدارت کر رہے تھے۔ 10 لڑکیوں نے حصہ لیا تھا۔ آخر میں شاہدہ بولی اس کی تقریر دوسری تقریروں پر بھاری تھی، لیکن وہ انعامی مقابلے میں شریک نہیں تھی کیونکہ اس کا تعلق کالج سے نہیں تھا۔ اس کے بعد جج صاحبان فیصلہ کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ دفعتاً سردار دراب نے اٹھ کر مجمع کو مخاطب کیا۔ خواتین و حضرات، جب تک جج صاحبان فیصلہ کریں، آپ اپنے ملک کی ایک عظیم ہستی جناب ڈاکٹر علی عمران MSc PhD آکسن سے موضوع کی موافقت میں ایک بصیرت افروز تقریر سنیے۔ آپ سائنٹیفک طور پر
ये साबित करेंगे कि औरत मर्द से बरतर है। डॉक्टर साहब से इस्तदा है कि डाइस पर तशरीफ ले आए। मेरे हाथों के तोते उड़ने ही वाले थे कि मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से पकड़ा। आज दोपहर ही को सरदार दुर्राब ने मुझे आगाह कर दिया था कि वो मुझसे मेरी बदतमीजियों का इंतकाम लेंगे, मगर मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे भरे मजमे में उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। मैं और तकरीर, खुदा की पनाह, संजीदा मौज़ूआत मुझे हमेशा से ही खलते आए थे। ख़वातीनो हजरात, वाह इमरान साहब, बात बन गई। देखिए, मर्द पर औरत की बर्तरी साबित हो गई। पहले ख़वातीन फिर हजरात। जो लोग मौजू की मुखालिफत में बोले हैं, उन्होंने भी आपको इसी तरतीब से मुखातिब किया था। ख़वातीनो हजरात, उन्होंने हजरात व ख़वातीन नहीं कहा था। ये है साइंटिफिक सबूत। यानी मर्द के तहत शऊर में ये बात बैठी हुई है कि औरत मर्द से बरतर है, इसीलिए वो पहले ख़वातीन को मुखातब करता है, फिर हजरात को। जनाब सदर ख़वातीन व हजरात, औरत को अल्लाह पाक ने मर्द से बरतर बनाया है। इसका खुला हुआ सबूत यह है कि उसे मर्दों के मुकाबले में बहुतेरी सहूलतें नसीब हैं। मसलन उसे रोजाना सुबह उठकर मर्दों की तरह शेव नहीं करना पड़ती। सुभान अल्लाह। और जनाब, तीसरा साइंटिफिक सबूत यह है कि मर्द 1 और 1 2 नहीं हो सकता, मगर औरत 1 और 1 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, 5 हो जाती है। शाहिदा, इस इमरान ने तो यहाँ भी बेहूदगी शुरू कर दी है। हॉल में बैठी हुई औरतें और लड़कियां बुरी तरह झेप रही हैं। बिल्किस, बाबा ने शायद इमरान से उसकी बदतमीजियों का इंतकाम लेना चाहा था, लेकिन अब उनका चेहरा सफेद पड़ गया है और इमरान तकरीर किए जा रहा है। बरतर वही है जो बेवकूफ है। जितना बेवकूफ उतना ही बरतर। पहले मर्द औरत पर हुकूमत करता था ताकत से, अब बेवकूफ यानी बरतर बनाकर हुकूमत करता है। औरत पर दोहरी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। मर्द खुद उन्हें दोष बदोष काम करने का मौका देता है। रह गए 4 दीवारियों वाले फराइज, तो औरतें उन्हें आदतन अंजाम देती हैं। यानी मर्द औरतों के दोष बदोश बच्चों को दूध नहीं पिलाता, औरतों के दोष बदोश बावर्ची खाने में झक नहीं मारता, औरतों के दोष बदोश घर की सफाई नहीं करता, बच्चों के कपड़े नहीं धोता। उस वक्त वो पलंग पर लेटकर चैन की बंसी बजाता है या दोस्तों को समेटकर ताश खेलने लगता है। औरत मर्द से इसीलिए बरतर है कि उसने दोहरी जिम्मेदारियां समेट रखी। सुभान अल्लाह, बल्कि माशाअल्लाह। बैठ जाओ। ख़वातीन व हजरात, डॉक्टर साहब इस वक्त मिज़ा के मूड में थे। बहरहाल उन्होंने आपको फैसले के इंतजार में बोर होने से बचा लिया। हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। अब मुअज़्ज़िज़ जज साहबान का फैसला सुनिए। नहीं, पहले सदारती तकरीर। बूढ़ा सदर अपने 75 साला तजर्बात की बिना पर सिर्फ ये कह सकता है कि औरत और मर्द में से कोई भी एक दूसरे से बरतर नहीं है। औरत और मर्द जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। हाँ, अब फैसला सुनिए। वापसी पर हम पैदल आ रहे थे और सरदार दुर्राब मुझ पर बुरी तरह बरस रहे थे। नालायक हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई मिस्टर अली इमरान। और आपकी वजह से मेरा हार्ट फेल हो गया होता तो मैं किससे शिकायत करता? खुदा की पनाह, जुबानी बोलना। ये हादसा भी मेरे लिए यादगार रहेगा। अरे बिल्किस, ये हम किधर आ गए? ओह शाहिदा, ये सब बकवास है। कोई बेहुदा आदमी हम सबको हिरासा करना चाहता है। मैं किसी दिन उसे गोली मार दूंगा। क्या किस्सा है? लोहे वाला फाटक, वो आसेब ज़दा है।
उफ, कैसा खौफनाक माहौल है। तुम लोग ख्वामखा बात का बतंगड़ बनाते हो सकता है कि वहाँ किसी तरह कोई भेड़िया ही पहुंच गया हो। मगर बाबा, दरवाजा कोई आदमी ही हिलाता है। कल भी मैंने उसे खुलवा कर देखा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। आप अंदर कब गए थे? आप तो फाटक पर ही खड़े रहे थे। वहाँ उस वीराने में घुसकर अपने कपड़े खराब करता? क्यों? वो इमारत इस्तेमाल में नहीं है, उसमें अच्छा खासा जंगल उगाया है। किसी और को अंदर भेजना चाहिए था। सभी कमबख्त उसे आसेब ज़दा समझते हैं। जाता कौन? ये क्या किस्सा है जनाब? इन्हीं लोगों से पूछना, मुझे इस किस्से से कोई दिलचस्पी नहीं है। लीजिए, अब हम रिहायशी इमारत में वापस पहुंच गए हैं। सरदार दुर्राब अब लिबास तब्दील करने चले गए हैं और हम तीनों ड्राइंग रूम में आ बैठे हैं। बिल्किस, शाहिदा, अब तो मुझे बताइए कि ये लोहे वाला फाटक क्या बला है? एक इमारत का फाटक जो इस्तेमाल में नहीं है, उसके सहन में अच्छा खासा जंगल उगाया है। इधर पिछले 15 दिनों से वहां से अजीब किस्म की आवाजें आने लगी हैं। रात गए लोहे का फाटक इस तरह से हिलने लगता है जैसे कोई आदमी उसे हिला रहा हो। इसलिए वो आसिफ ज़दा करार दिया गया है। फिर आप और क्या कहेंगे इमरान साहब? शाहिदा साहिबा, मुझे क्या पड़ी है कि कुछ कहूं, मगर यहाँ कोई बहुत बड़ी वारदात होने वाली है। सरदार दुर्राब को पछताने का भी मौका न मिल सकेगा। क्या मतलब? मतलब बताने से पहले मैं फिर उन्हीं सवालात पर जोर दूंगा जो मैंने आज दोपहर को किए थे। शाहिदा कुछ ना बोली। उसने अपने होंठ मजबूती से बंद कर लिए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे खदशा हो कि कहीं जुबान से कुछ निकल ही ना जाए। रात के खाने के दौरान में सरदार दुर्राब के चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार थे, लेकिन खाने के दौरान खामोशी ही रही। शायद वो बिल्किस की मौजूदगी में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे। गालिबन बिल्किस ने भी महसूस कर लिया, लिहाजा वो खाने के बाद वहां नहीं ठहरी। सरदार दुर्राब, शाहिदा और मैं वहीं बैठे रहे और शाहिदा ने सरदार दुर्राब से कहा, बाबा, इमरान साहब कहते हैं कि मुआहदे के अलावा कोई दूसरा मामला भी हो सकता है। क्या आप इन्हें दूसरे मामले के मुतालिक कुछ नहीं बताएंगे? शाहिदा, अगर तुम किसी दूसरे मामले से वाकिफ हो तो जरूर बता दो। बाबा, मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कहना चाहती। न ये अपनी जुबान से कुछ कहना चाहते हैं और न आप। मेरे ख्याल से आप दोनों अपनी जुबानों का बीमा करवा लीजिए। तुम उल्लू हो। चले गए सरदार दुर्राब साहब। मिस शाहिदा, अगर अब उल्लू बोलना शुरू करेगा तो ये इमारत वीरान हो जाएगी। सुनिए इमरान साहब। सुनाइए शाहिदा साहिबा, वरना अगर मैं पागल ना भी हुआ तब भी अपने कपड़े चीर फाड़ कर जंगल की राह लूंगा। आप बोलते बहुत हैं। ठहरिए, मैं बताती हूँ। बाबा उस दिन शाम को एक वसीयतनामे पर दस्तखत करने वाले थे। हाँ, और किसी को इल्म नहीं कि उन्होंने किस किस्म की वसीयत मुरत्तब की है। आप भी नहीं जानती? नहीं, मैं भी नहीं जानती। फिर आपने इसे छुपाने की कोशिश क्यों की थी शाहिदा साहिबा? इमरान साहब, मैं नहीं चाहती थी कि अपनी जबान से कुछ कहूँ। बाबा के सारे अजीज मुझसे महज इस बिना पर जलते हैं कि बाबा को मैं बहुत अजीज हूँ। वो जहाँ भी रहते हैं सिर्फ मुझे अपने साथ रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा ने वो वसीयत तुम्हारे ही हक में की होगी? खुदा जाने, मैं ये जानना ही नहीं चाहती और ना ही ये चाहती हूँ कि बाबा मेरे हक में कोई वसीयत करें। मैं दूसरे हकदारों को मायूस नहीं देखना चाहती। आप ये इसलिए कह रही हैं कि आप पर कोई हर्फ ना आए? इसीलिए मैं अपनी जबान से इसका तस्करा नहीं करना चाहती थी। मगर अब तो कर ही चुकी हो तस्करा। मुझे सिर्फ बाबा अजीज हैं। मैं उनके लिए मर भी सकती हूँ। मुझे उनकी दौलत की परवाह नहीं है। अगर वो मुफलिस आदमी होते तो भी मैं उनसे इसी तरह मोहब्बत करती, क्योंकि उनकी रूह तो मुफलिसी में भी इतनी ही अजीम होती। ये अजीम रूह क्या चीज है? मैंने अजीमुद्दीन सुना है, अजीमुल्लाह सुना है,
मिर्जा अजीम बेग चुगताई मरहूम सुना है, लेकिन ये अजीम रूह। आप क्रैक हैं। बेशक हूं। हाँ, तो जरा बाबा के ऐसे अज़ा की फहरिस्त भी मुरतब कर दीजिए जिन्हें किसी वसीयतनामे से दिलचस्पी हो सके। आप इससे मुझे माफी रखिए इमरान साहब। शाहिदा साहिबा, मैं ये नहीं कहता कि वो बिच्छू आप ही ने रखे थे। आप ये भी कह सकते हैं अगर आपको हालात का इल्म हो जाए। सिगार का डब्बा मैं ही बाबा की ख्वाबगाह से उठाकर लाई थी। बाबा जब पढ़ने में महव होते हैं तो टिटोल कर सिगार का डब्बा खोलते हैं, उसे देखे बगैर। अच्छा, दुर्राब कैसल में सरदार साहब के कितने अज़ा रहते हैं? आप खुद मालूम कर लीजिए। तुमने वो बिच्छू नहीं रखे थे? नहीं। क्या तुम सरदार दुर्राब के लिए जान दे सकती हो? हाँ, अगर जरूरत पड़े। मैं उनसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ। लेकिन तुम उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मैं तुमसे जो कुछ मालूम करना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है। मुझे उन अज़ा की फहरिस्त चाहिए जो कैसल की हदूद में रहते हैं। इमरान साहब, बेहतर है इस सिलसिले में आप बाबा से गुफ्तगू करें। मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। वैसे शाहिदा, मेरा ख्याल है कि कैसल की हदूद में तुम्हारे या डॉक्टर नजीब के अलावा और कोई नहीं है। है, बाबा से पूछिएगा। अरे तो तुम ही बता दोगी तो क्या हो जाएगा? क्या तुम भी बाबा ही की तरह क्रैक हो? इमरान साहब, आप बहुत बदतमीज हैं। आपको गुफ्तगू का भी सलीका नहीं। आप किसी की कोई हैसियत ही नहीं समझते। शाहिदा, मेरी आदत है, हमेशा सच्ची बात कहता हूं। मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहती। मैं खुद भी नहीं करना चाहता। इतनी ही सी देर में तुमने मेरे दिमाग की चूलें हिला दी। टाँ 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 किस तरह रुकती नहीं। बड़ी बूढ़ियों से सुनता आया हूं कि कुंवारी लड़कियों को ना इतर लगाना चाहिए और ना ज्यादा टाँ टाँ करना चाहिए, वरना आसमान टूट पड़ता है सर पर। लिहाजा कबल इसके कि आसमान टूटे, मैं खिसक जाना चाहता हूं। टाटा।